सिंसियर रिक्वेस्ट है नमन धीर को कि कीपिंग मत कर भाई, प्लीज। कीपिंग करना अगर चालू कर दिया ना भाई, तू वापस स्टेफनी बन जाएगा। LAC's highest wicket taker, the guy who's busy signing autographs in the middle of the stadium, unlike most other cricketers who prefer doing it outside to the fans. यार देखो, ऐसा तो फिर मैं यश दयाल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यू नीड अ बैकअप फॉर अर्शदीप, क्योंकि लाइक फॉर लाइक वही होगा व्हेन यू रिप्लेस अ लेफ्ट आर्मर विद अ लेफ्ट आर्मर। चलिए, स्वागत है आप सबका एक और बैठक में। हम सबको पता है कि आईपीएल 10 दिन के अंदर खत्म होने वाला है, एंड इनफैक्ट उसके बाद T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया 18 T20 आईज खेलने वाला है। So we are here to discuss ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो इस सीजन में अच्छे किए एंड दे डिजर्व टू बी हैंडेड अ डेब्यू कम द इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर। तो स्टार्टिंग फर्स्ट, it is none other than the KKR number 3, Ankush Raghuvanshi. Somesh, let's start with you. Do you see him making a T20I debut soon enough? Honestly बोलूँ तो not anytime soon, but I'm a little disappointed कि वो A टीम में नहीं है in the England setup. उनका जो गेम है वो देख के मुझे लगता है कि that is where he is more ready. Of course, T20s की अभी still young, तो he can develop that power game, क्योंकि T20 और भी ज्यादा पावर की तरफ जाते जा रहा है, एंड इवन द एंकर बैटर्स these days require कि भाई they have that sixth gear. So from that perspective, I think from a T20 lens, I think he is अच्छा खासा far, not even थोड़ा far, but hopefully, I mean, he can shine in other formats. The next player was a part of LSG's retentions. Ayush Badoni retained for 4 crores, and he's surely been worth that money and much more, to be honest. Nikhil bhai, starting with you again, a batter who's floated up and down the order. He's added value on the field too. Do you think he can potentially be handed a debut soon? Yeah, he's a name I would want to see, especially in the role that India look at for a number 5. क्योंकि मेरे को लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द इंडियन टीम वो एक स्पॉट काफी ज्यादा ओपन है, ऊपर लॉक जैम है, नीचे भी एकदम लॉक जैम है। अभी अक्षर भाई वहां पे प्रॉपर फोर्ट बना के बैठे हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। और बडोनी के साथ आपको अच्छी बात ये मिल रही है कि आई थिंक हिज पास द टेम्परामेंट चेक फार टू ऑफन फॉर मी, कि जब भी मुश्किल में होती है एलएसजी, नो मैटर द सरफेस, इज ऑलवेज फाउंड अ वे एंड अ गियर टू हिट बोथ पेस एंड स्पिन. So yes, he may be challenged when he plays international cricket, but he is definitely a name that I would want to see के try करके देखो. अगला वर्ल्ड कप इंडिया में ही है, तो कंडीशंस का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, so definitely a try. यार अगले दो ना मेरे हिसाब से टीम इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल होंगे, because it's that finishers area or role that we've not been able to really zero in on, especially after the likes of MS Dhoni retiring. First up, of course, Punjab Kings Shashank Singh. Yeah, actually, based on how India are gonna shape up in the T20 department, if they're opening with Sanju, that means they have a wicketkeeper sorted. Then I want Shashank Singh to be given cap immediate, because then your number 6, 7 is vacant, assuming कि अक्सर plays at 5, they get 6. तो number 7 Rinku वाला spot अभी भी there is question mark, and Rinku's form has regressed, तो थोड़ा उस पे concern होना obvious है. Shashank Singh has been exceptional. हमने कुछ आई थिंक लास्ट वीक जो हमने एक बंच ऑफ बॉलर्स की बात की थी जो इस साल के बेस्ट बॉलर्स हैं, उनमें से किसी ने भी अभी तक शशांक सिंह को डिसमिस नहीं किया है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही हैज स्कोर्ड 72 runs in 42 balls against those bunch of bowlers. This is his second good season. He had a very good last season as well. तो फर्स्ट सीजन सिंड्रोम भी नहीं है, नहीं सेकंड सीजन सिंड्रोम भी नहीं हुआ उनके साथ के भाई फॉर्म रिग्रेस हुआ है. सो 2 good seasons definitely mean that he deserves the step up or the promotion. So I'm expecting Shashank Singh squad में होंगे first and foremost, and based on how India shape up, he can be in the 11 as well. Of course, अगर if KL Rahul is the wicket keeper, then वो जगह फिर से खाली फिर जगह बचेगी नहीं. But other way around, I'm expecting Shashank to play. When it comes to finishers, probably a lesser known name that way would be Naman Dheer. Shashank Singh के बारे में काफी लोग बात कर रहे हैं, but no one's talking enough about the fact that Naman Dheer has been just as consistent for the Mumbai Indians. In fact, he was RTM ahead of the likes of Nehal Vadera at the auction as well. Nikhil bhai, starting with you again, this is another guy that Team India can be looking at. Yeah? बिल्कुल, और मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है नमन धीर को कि कीपिंग मत कर भाई, प्लीज। कीपिंग करना अगर चालू कर दिया ना भाई, तू वापस स्टेफनी बन जाएगा, कि देखो सब जगह यूज करेंगे, ओपन कराएंगे, नंबर 3 करेंगे, 6 करेंगे. बेटर है जो तू कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, क्योंकि what you see with him in Mumbai as well, he's been pushed up,
He's batted low and he's been able to adapt on difficult conditions. Last few games अगर आप देखें जहाँ पे हार्दिक आउट हुआ था, that's when Naman came in and he got some input from Sky and you could see how easily Naman could execute his shots. तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये तो हमें पता ही है. Almost at this point in time, Punjab is a factory that is churning out T20 gems. Naman is a name that I am very keen to see. Unfortunately, I don't know if the spot is open for him to be tried. When you have player like Naman, you need to be very sure कि तुमको उससे क्या चाहिए. Do you want a number 6? Do you want a number 5? आपको opener चाहिए, आपको क्या चाहिए? So I think that is where Naman might be missing out on. और क्योंकि शशांक ऑलरेडी है, अगर शशांक नहीं होते तो then I think Naman was a name that I was very keen on कि इसको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो क्योंकि टाइम भी बहुत है. बट शशांक के साथ टाइम थोड़ा वैसा आपको लगता है कि शायद नहीं होगा, तो अगला T20 वर्ल्ड कप आप शशांक के साथ जाइए, बट उसके बाद I definitely see Naman coming into the Indian team. All right, now moving on swiftly to the bowlers, there have been quite a few who've made a name for themselves this season. First up, of course, LAC's highest wicket taker, the guy who's busy signing autographs in the middle of the stadium, unlike most other cricketers who prefer doing it outside to the fans. It is none other than Digvish Singh Rathi. यार first and foremost thanks for making it so easy for me, क्योंकि मेरे ये इन लिस्ट में ऐसे दो नाम थे जो मुझे बहुत ऑब्वियस से लग रहे थे कि आने ही चाहिए. One of them was Shashank and second is Digvesh Rathi. But unlike Shashank, Digvesh की जगह immediate नहीं है. I still feel क्या मतलब it's fairly obvious that India have Kuldeep and Varun as their premium spinners. अक्सर खेलने ही वाले हैं. तो अगर 3 स्पिनर भी खिलाओगे तो ऑलरेडी यू हैव 3 स्पॉट्स, बट मोर ऑफन देन नॉट you'll only play 2. तो वो भी जगह है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दिग्वेश हैज leapfrogged Ravi Bishnoi even in his IPL team, so that means he has leapfrogged Ravi Bishnoi in the Indian team as well, and both of them have had leapfrogged Yuzvendra Chahal काफी टाइम अगो. तो अभी पैकिंग ऑर्डर थोड़ा क्लियर होता दिख रहा है. सो गुड फॉर दिग्वेश राठी, बिकॉज इफ देयर इज अ इंजरी कंसर्न या वर्कलोड मैनेजमेंट की बात आती है, स्पेसिफिकली विद कुलदीप, बिकॉज नाउ ही इज योर ऑल फॉर्मेट बॉलर. तो Digvesh might end up playing a lot of games for India. You're right. Digvesh Singh Rathi is also a name I'm looking forward to. But another name that I think could potentially make it to Team India is his Lucknow Super Giants teammate and fellow DPL guy, Mr. Prince Yadav. Actually, एक काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी है प्रिंस का कि I can't recall too many Indian bowlers who can start their spell with Yorkers. तो वो एक मेरे को काफी इम्प्रेसिव चीज लगी अबाउट प्रिंस के पहले ओवर में भी भाई वो आके यॉर्कर डाल सकता है. तो टू मी दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड टिक के भाई इसको आई हैव टू वर्क विथ. मे बी फॉर्मेट इज समथिंग दैट वी कैन स्टिल कीप इट ओपन के भाई कौन से फॉर्मेट में ज्यादा सूटेबल करते हैं, क्योंकि देयर हैज टू बी लाइफ आफ्टर बुमराह. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रिंस बुमराह बनेगा, बट बुमराह जैसे 2-3 छोटे छोटे प्लेयर्स आपको बनाने पड़ेंगे. तो वहां पे आई थिंक प्रिंस विल हैव टू बी यूज्ड एंड सीन कि रिवर्स स्विंग है, यॉर्कर है, शॉर्ट बॉल अच्छा है, व्हाट ऑल कैन यू देन डू. क्योंकि स्किल्स उनकी आपको याद रखना पड़ेगा, इट्स नॉट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल क्रिकेट. वो अलग तरीके की क्रिकेट खेल के सिस्टम में आए हैं, तो उनके साथ आपको अलग चैलेंजेस मिलेंगे इन द कमिंग टाइम. And lastly, of course, I've got a bowler who's played for both of Somesh's favorite teams, RR and MI. It's none other than Akash Mathur. भाई साहब ने player of the match ले लिया यार अपने last league stage game में for the Rajasthan Royals. Nikhil bhai, starting with you again, Akash Mathur has been impressive यार. Unfortunately, MI के लिए ज़्यादा game time नहीं मिला. Maybe given a consistent run, he might be able to do wonders for Team India too. Yeah, I think Akash Mathur is a name that I hope is tried in the coming times, क्योंकि जैसे मैंने बोला जितनी वैकेंसीज बैटिंग में क्लियर है, उतनी बॉलिंग में उतनी चीख के नहीं बोल रही हैं कि भाई मैं रेडी हूं, मुझे खिलाओ. तो आई थिंक दैट्स व्हेयर इंडिया विल हैव टू ट्राई अ लॉट मोर ऑप्शंस. हमने काफी दफा देखा है whether it is Siraj or anybody else, back end में ऑप्शंस बहुत कम दिख के आते हैं इंडिया को. आई थिंक आकाश मधवाल इज वन ऑप्शन दैट आई फील. स्किडी बॉलर है, स्टंप टू स्टंप भी डालता है, अगेन अनदर गाय हु कैन यूज द यॉर्कर वेल. तो रिवर्स भी हो रहा है, दैट इज आल्सो गुड न्यूज़ फॉर हिम एंड फॉर बॉलर्स अराउंड. तो डेफिनेटली अ नेम दैट आई वुड वांट टू सी इन द इंडियन कलर्स. आई थिंक उनको चांस मिल भी जाएगा बिफोर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. 18 T20 आज टीम इंडिया खेलने वाला है. 3 against Bangladesh, 5 against Australia, 5 against South Africa and 5 against New Zealand. The last of these 15 T20Is will be happening between December and Jan, which essentially means Team India will be playing like a 2-month-long 15 T20I tournament before the World Cup. Then they play the World Cup, and then right after the World Cup, it's the IPL. So that's 5 months of jam-packed, high-quality T20 cricket, and I go on, I'm not complaining about it. But surely I must have missed a few names.
Somesh, starting with you, what are some names that you think off the top of your head should just make it to the side? Yeah, apart from these names, there is no one which I feel is like out and out ready to make it to the side. Uh, just a couple of names maybe that I feel. I mean, I will keep a lookout for. Vaibhav Suryavanshi is one of them. Not just because he's too young, but I mean, शुरू के एक दो मैचेस में तो फिर भी लग रहा था कि भाई थोड़ा लक भी साथ दे रहा है, बट कुछ शॉट देख के तो लगा है कि नहीं यार, मतलब बात तो है. सो वुड बी फॉलो हिम क्लोजली. अपार्ट फ्रॉम दैट, या आई मीन, यार देखो, ऐसा तो फिर मैं यश दयाल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यू नीड अ बैकअप फॉर अर्शदीप, क्योंकि लाइक फॉर लाइक वही होगा व्हेन यू रिप्लेस अ लेफ्ट आर्मर विद अ लेफ्ट आर्मर. सो आई थिंक, आई होप India have a plan to integrate Yash Dayal into the system. Before I ask Nikhil bhai, a question to both of you. Would it be very wrong if Team India decides to play Vaibhav Suryavanshi just for that record? मतलब 14 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, मजा आ जाएगा. न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस, people like us, we'll all have a field day just talking about it. सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछा आपने मेरे मीम जवाब के लिए, कि आप जो बात कर रहे हैं वो बहस के लिए बहुत बढ़िया है, पर वो प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर इट्स नॉट कि वी डोंट थिंक ही डिजर्व्स, बट सही समय पे आपको ये भी नहीं चाहिए कि वो बंदा लॉस्ट हो जाए इफ ही हैज अ पुअर सीरीज. तो और आपको पता है हम बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, हमें थोड़ा भी पेशेंस नहीं है. तो एक बुरी सीरीज वैभव के लिए और फिर पूरा इंस्टाग्राम, पूरा ट्विटर, सब पागल, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई क्यों खिला रहे हो, मजाक चल रहा है. तो आई वुड वांट हिम टू बी ट्रीटेड एज अ गुड प्रोफेशनल हु प्लेज व्हेन इज रेडी. अगर यस, इफ दे फील कि नहीं वो रेडी है तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट, बट देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खिला के फिर उनको निकाल दिया. यू हैव टू गिव हिम अ गुड रन, एंड दैट इज ओनली, एंड दैट इज जस्ट इट बेसिकली. मतलब उतना तो आप एक्सपेक्ट करोगे. यार एक्चुअली अभी तो सवाल ये है कि विल इंडिया सेंड हिम टू द अंडर 19 वर्ल्ड कप, क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल है. इंडिया का अंडर 19 सिलेक्शन वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. दे वांट टू एक्चुअली प्रमोट प्लेयर्स हु हैव नॉट बीन गिवन दैट एक्सपोजर. तो अभी तो बात उस पे आती है, बट आई थिंक ये बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं जो ऑलरेडी ही विल एंड अप प्लेइंग, जो इमर्जिंग टूर्नामेंट्स होते हैं. आई सी हिम प्लेइंग राइट अवे. बट टू योर पॉइंट, आई मीन, आई डोंट नो यार, जैसे अगर अभी अगर उनको लगेगा कि यार कंटेंट की थोड़ी कमी हो रही है, नाउ दैट कोहली एंड रोहित आर गोना प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर, तो मे बी दे विल से कि चलो कुछ तो करें. Of course, Nikhil bhai, what about your names? तो मेरे पास दो नाम है. एक मुझे लगता है मोस्टली रेडी है, एंड दैट नेम इज प्रभसिमरन सिंह. कीपर बैटर, टॉप 3 में बैटिंग करता है, जगह भी है, रोल भी है और जरूरत भी है. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स अ गुड रन. आई थिंक वो अमेजन कप में थे भी टीम के साथ. तो आई थिंक ही इज समवन हु शुड बी गिवन चांसेस, क्योंकि सेट होके पेस को भी मारना, स्पिन को भी मारना, दैट इज एज मच एज यू कैन आस्क फॉर हिम. तो आई थिंक संजू विल बी हैप्पी कि बाकी के जो उनके कंटेंडर्स है दे हैवंट हैड अ गुड आईपीएल. आई थिंक प्रभ सिमरन इज समवन हु विल बी ब्रीथिंग डाउन हिज नेक के भाई थोड़ा भी आगे पीछे हुआ, एंड देन प्रभ इज रेडी. दूसरा नाम थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म है, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड होपिंग जेन्युइनली कि विप्रास निगम गेट्स एन इंडिया कैप वेरी सून, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है कोई लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर जो कवर के ऊपर फोर मारता है. सॉरी मैं बायस्ड हूँ, जब भी कोई बैटर कवर या पॉइंट के पीछे मारता है आई जस्ट फील कि भाई दिस इज अ रेयर स्किल, क्योंकि एरिया आप अलग एक्सेस करो. एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड उनकी बैटिंग से ज्यादा वैल्यू आपको नहीं आएगी. बॉलिंग में भी आप कहोगे भाई 4 अच्छे बॉल फिर 2 शॉर्ट बॉल, बट बहुत ज्यादा रूम है टू वर्क विथ और स्किल्स भी है. So I think he's the one name that I would be absolutely delighted if he gets a cap before the next World Cup, क्योंकि rare skill है, ढूंढने पे भी नहीं मिलती. तो ये तो आ गया है तो यूज कर लो यार. So on that note, it is time for us to end this bet. Thank you so much for tuning in once again. And like always, folks, please comments में बताइएगा अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने चाहिए, और also do बताइएगा कि आप इन नामों से agree करते हैं. Are there any more names that you think should be playing for Team India? And until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much for tuning in. Take care. Bye-bye.